Good evening, Bharat. And just as we're coming live to you tonight on the right stand, and we're going to be queuing up the MOS Finance Anurag Thakur in just a bit. But let me tell you, this Monday, after 60 days when the skies opened up at 1/3 of the summer schedule, 630 flights have been cancelled because of states' restrictions. Karnataka issues an addendum saying it exempts on-duty air crew and union ministers from quarantine after the entire Sadananda Gowda controversy, but this order is dated 23rd of May, but it's been shared only today. So these are the latest updates that I join you with, along with the fact that we need to be proud of ourselves as a nation, because close to 4 months of COVID-19 coming to India, that is the 30th of Jan, we are on the 25th of May, we are still less than 80,000 active cases. We are still within about 4,000 odd deaths compared to the United States, which has close to 1 lakh deaths. We as a nation of 1.3 billion people have done a phenomenal job by respecting the lockdown, and the government perhaps sent the nation into lockdown, all of us into lockdown mode, just in time. 3,280 patients have been cured in the last 24 hours. 57,720 is the total number of COVID-19 patients who are now cured. Recovery rate is up to 41.57%, up from 40.97% on the 22nd of May and 6.39% on the 3rd of April. Tests to case ratio is 4.57%, down from 4.7% in mid-April, especially when we are testing on an average of 1 lakh tests per day. 30.34 lakh tests have been conducted across the country so far. 90,170 tests in the last 24 hours. Testing per million of the population is now up to 2,334. It was 2,091 on the 22nd of May, and it was just 27 on the 29th of March. Mortality rate is 2.89%, so it's come down. It was 3.02% on the 22nd of May. 6.36% is the global average. And 78% cases are concentrated in just 6 states: Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Delhi, Rajasthan and Madhya Pradesh. And the domestic PPE capacity has been ramped up to more than 3 lakh kits being manufactured daily. That number actually stands close to 5 lakh now. So, and it's a 7,000 crore industry from zero about 60 days ago. So that's what has happened. That's what we've been able to do. Without much further ado, let's go across and welcome the Union Minister of State for Finance, अनुराग ठाकुर. अनुराग जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए. मेरा सबसे पहला सवाल, मैं जानता हूं कि आपको भी ये चुभ रहा है, आप भी इसे देख रहे हैं. हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं, जो पैदल पैदल जा रहे हैं, मीलों चल के जा रहे हैं, इतनी गर्मी में चल के जा रहे हैं, जैसे कि उनका कोई नहीं, उनको सबने पराया कर दिया. अब आप मुझे बताइए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका दोष किस पर मढ़ा जाए? क्योंकि विपक्ष कहता है कि ये सरकार की गलती है, सेंटर कहता है स्टेट्स की जिम्मेदारी है, स्टेट्स कहते हैं सेंटर ने कुछ खास नहीं किया. आप कहां पर हैं? आनंद जी, पहली बात तो एक कि किसी को दोषी ठहराने की बजाय मैं कहूंगा हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. और कोविड-19 से लड़ने के लिए जी सही कह रहे हैं, जहां दुनिया एक और लड़ रही है, भारत भी अपनी जंग लड़ रहा है. दुनिया में जिन 15 देशों में सबसे ज़्यादा केसेस है, उनकी कुल जनसंख्या मिला लीजिए और भारत की मिलाइए तो एक बराबर है जी. लेकिन वहाँ पे 83 टाइम्स ज़्यादा मृत्यु हुई है, यानी कि 83 गुना ज़्यादा मौत हुई है वहाँ पे. 43 टाइम्स ज़्यादा केसेस हुए, यानी कि 43 गुना ज़्यादा केसेस वहाँ पर हुए. तो उस मुकाबले भारत ने अच्छा किया. अब दूसरी बात आती है कि गरीबों के लिए क्या, श्रमिक मजदूरों के लिए क्या. हमने पहली घोषणा की थी तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की. 80 करोड़ गरीबों को अनाज देने का काम मोदी सरकार ने 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त में. उनको दवाई उपचार के लिए 15,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान करके दिया. और अब जब श्रमिक मजदूरों की बात आई तो हमने ये भी कहा कि 8 करोड़ ऐसे हमारे श्रमिक भाई और बहनों को 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान करके इनको अलग से अनाज दिया जाए. इसके अलावा हमने राज्यों को 11,000 करोड़ रुपया स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड में दिया, ताकि आपदा राहत के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, कोई भूखा न रहे, किसी को इलाज की कमी ना हो. अब जब बात आती है कि आखिरी मजदूर वापस जा क्यों रहे हैं, देखिए दो लोगों की जिम्मेदारी है, होस्ट स्टेट और होम स्टेट. जिस राज्य से आते हैं उनको वापस लेना है, और जिस राज्य में काम करते हैं उनको शेल्टर और फूड देना है, इनके खाना और रहने की व्यवस्था करनी है. तो कहीं ना कहीं प्राथमिक जिम्मेदारी इन दोनों की आती है.
जहां काम करने के और जहां से काम करने के लिए आया। हमने ट्रेन उपलब्ध करवानी थी, हमने वो भी कराई। 85% पैसा, 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया। खाना और पानी भी हमने सुविधा दी। अब वो वापस जाएंगे अपने गांव तो उनके लिए मनरेगा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर हो सकें। तो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 1 लाख करोड़ रुपए का हमने मनरेगा के लिए रखा, जिससे 300 करोड़ परसेंटेज ज़्यादा होंगे और उन श्रमिकों को वहाँ पर रोजगार के अवसर भी वापस घर में जाकर मिलेंगे। लेकिन जो बीच में हुआ वो बहुत दयनीय है, दुखित है कि क्यों इतना लंबा पैदल चलना पड़ रहा है। जिस राज्य से जा रहे हैं और जहाँ पर जाना है, क्या वो आपस में तालमेल करके बसों का या जो हमने ट्रेन का प्रावधान किया, क्या उसको नहीं ले सकते थे? तो मुझे लगता है इस पर और चिंता और प्रयास करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र से श्रमिक चले जाएंगे तो क्या महाराष्ट्र चल पाएगा? क्या मुंबई पुणे जैसे बड़े शहर या दिल्ली जैसा शहर या और भी आज जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, उनको समझना होगा ये केवल श्रमिक नहीं, ये राष्ट्र निर्माता हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण में हम भूमिका निभाते हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान इनका मोदी जी ने इनको अनाज देने से लेकर बाकी सब सुविधाएं देने का सोचा था और किया। अनुराग जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर कि क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ना ये अपनी कर्म भूमि के रहे, ना ये अपनी जन्मभूमि के रहे। कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव फेलियर नहीं है, चाहे वो शासन हो, सरकार हो, शहरी समाज हो, जिन्होंने एक ये यूज एंड थ्रो जैसा कर दिया। जब श्रमिकों को हमारी ज़रूरत थी, हमने इनको पराया कर दिया। देखिए, ये दिक्कत तो आई, ऐसे कोई झुठला नहीं सकता। मान लीजिए दिल्ली से अगर कोई गया है या महाराष्ट्र के मुंबई से गया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों राजधानी है, एक आर्थिक और एक राजनीतिक रूप से देखा जाए जी। तो क्या वहाँ की जब सरकारों ने कहा कि हम इनके रहने का और बाकी प्रावधान करेंगे खाने का, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनमें जो विश्वास पैदा करने वाली बात थी वो नहीं कर पाए, जो समन्वय बिठाने वाली बात थी, आमने सामने बैठकर बातचीत करने वाली बात थी, वो क्यों नहीं हो पाई? लेकिन अभी भी समय गया नहीं, अभी भी वो विश्वास बांधना होगा, तभी ये वापस काम पर लौटेंगे। अभी भी विश्वास बांधना होगा, तभी ये यहाँ पर बैठकर काम पर जा पाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी जान सबसे ज़्यादा जरूरी है और जान बचाने का भी हमने काम किया। अब जहान को भी बचाना है और आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अनुराग जी कि इस पर सियासत खेली गई है, और वो भी दोगुली सियासत? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि कर्म भूमि और जन्मभूमि की बात अगर करें तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इन्हें जाने नहीं देना चाहते, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इन्हें आने नहीं देना चाहते। दो कारण है। एक तो मुझे लगता है राज्यों को एक डर है, ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े भी है वापस आने के बाद बढ़े, जब रास्ते में एक दूसरे से संपर्क हुआ, और अपनी व्यवस्थाएं वो शायद उस तरह से अच्छी नहीं कर पाए कि जब कोई गांव में या अपने इलाके में वापस आएगा तो उसका रहने का क्या हो पाएगा। ये सच्चाई है कि शहरों में थोड़े बेहतर प्रबंध हैं गांव से ज़्यादा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कल तक पीपीई किट्स और N95 मास्क भी देश में नहीं बनते थे। आज 5 लाख के लगभग पीपीई किट्स और 5 लाख मास्क प्रतिदिन भारत बना रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर एक बड़ा कदम है। दूसरी ओर हमने दुनिया भर के देशों को दवाइयाँ देने का काम किया इस संकट के समय, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमारा अपना गरीब या श्रमिक इस पर मजबूर हो जाए कि उसके गांव में या उसके जन्मभूमि वाले स्थान पे अगर सुविधाओं की कमी है तो वहाँ पर लेने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे लगता है थोड़े सोचने पर ज़रूरत है। और इसीलिए हमने केंद्र सरकार की ओर से ये कहा है कि ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर सभी राज्यों में आने वाले समय में ऐसी महामारी से लड़ा जा सके, उसके लिए हम कदम उठाएंगे, रिफॉर्म्स भी लाएं, और ताकि वहाँ पर आधारभूत ढांचा भी बन सके। राज्यों को इसमें साथ में आना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि केंद्र पैसा तो दे रहा है, राज्य भी उसको दिल खोलकर खर्च करे। क्योंकि देखिए, हमने 3% से 5% उनका FRBM एक्ट के अंतर्गत बढ़ा दिया, 4.25 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा मिलेगा। वेज एंड मीन्स एडवांसेस को 60% बढ़ा दिया, 11,000 करोड़ हमने अपफ्रंट दे दिया, 92,077 करोड़ 92,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा 2 महीनों में केंद्रीय कर से हमने राज्यों को दे दिया, 19,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में दिया है, और GST कंपनसेशन सेस भी दिया,
जो मुझे लगता है अपनी ओर से हमने सब करने का प्रयास किया है, आगे भी करेंगे। मेरा केवल इतना निवेदन है, ये जंग भारत की है, कोविड के खिलाफ है, इसमें कोई राज्य अपने आप को लगना देखे। मोदी जी ने बंगाल उड़ीसा गए तो तब भी ये नहीं कहा कि हमने 11,000 करोड़ पहले आपदा के लिए दे दिया, वहाँ पर 1,000 करोड़ पश्चिम बंगाल और 500 करोड़ उड़ीसा के लिए अलग से देकर आए। आखिरकार ये हमारे ही देश का हिस्सा है, हम सब भाइयों बहनों को एकजुट मिलकर सबका साथ देकर इस लड़ाई से लड़ना, और हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। जी बिल्कुल। और if you look at it, this is all immediate relief. The government has also said that we will help more, but कहीं ना कहीं ये सियासत, इस पर थोड़ा बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आंकड़ों पर ध्यान देना चाहूँगा। Let's just look at the numbers. 4 crore, as per the government numbers, 4 crore is the number of Shramiks or people who have moved, who are moving across the country. जिसमें से कह रहे हैं कम से कम 4 करोड़ हैं, उसमें से कम कह रहे हैं कि 75 लाख लोग, 75 lakhs have already gone back to their destinations. 3.25 करोड़ लोग, 3.25 करोड़ अभी भी अपनी अपनी जगह हैं। कुछ इस उम्मीद से है कि कारखाने शुरू हो गए तो अब उनकी आजीविका शुरू हो जाएगी, कुछ इस उम्मीद से है कि भाई मेरा नंबर आ जाएगा ट्रेन की लिस्ट में, मेरी जिस स्टेट में मैं रुक रहा हूँ वहाँ से मुझे घर भेजा जाएगा। कुछ लोग हैं कि अब बस शुरू होगी या अब मुझे इस ट्रक में बैठ के जाना पड़ेगा। सब अलग अलग पोजिशंस में हैं। कई लोगों का ये मानना है कि इसमें देरी हुई, ये जो इनको अपने घर जाने की जो सहूलियत देने में देरी हुई, और बी सरकार ने क्यों नहीं खर्चा उठाया, सेंटर ने क्यों नहीं कहा अगर आपको घर जाना हम घर भेज देते हैं, आपको जाइए कोई बात नहीं, पूरा खर्चा हमारा, कैसे भी जाना है बताइए हम आपके लिए सहूलत कर देंगे। सेंटर ऐसा भी तो कर सकती थी। विपक्ष से कई लोग ये कह रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये कि अगर राज्य लेने के लिए नहीं तैयार होगा तो केंद्र सरकार ज़बरदस्ती ट्रेन भर भर कर वहाँ पर नहीं भेज सकती। हम जहाँ पे 85% पैसा खर्च करें, 15% और भी कर सकते हैं, लेकिन राज्य की सहमति तो हो कि हम अपने लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। आखिरकार संघीय ढांचे में राज्यों की अपनी भूमिका है, कानून व्यवस्था उनका विषय है। हमने फ्लाइट शुरू कर दी, अगर कोई राज्य कहता हम लैंडिंग नहीं करवाएंगे, हम 14 डेज क्वारंटाइन करवाएंगे, तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। आप मीडिया में जितना मर्जी बोल लीजिए, मैं जितने मर्जी कदम उठाऊं, अगर राज्य नहीं मानता तो क्या करेंगे। इसी तरह से हमने राशन तो दे दिया राज्यों को, कई जगह कई लोगों ने अपना स्टैंप लगा के अपने नाम पे भी कर दिया, कोई फर्क नहीं, लेकिन आम गरीब तक तो पहुंचे। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस समय राजनीति से ऊपर उठकर अपना राजधर्म निभाना चाहिए सबको, ताकि वो राज्यों में इन लोगों का भला कर सके। दूसरा, आनंद जी, पहले काम धंधे शुरू नहीं हुए थे, अब व्यवसाय शुरू हो गए, तो अब बहुत सारे लोग काम पर भी वापस जाना शुरू हो गए। अब वापस लोग कम जाना चाहते हैं, शायद उतने नहीं जाना चाहते, और जो वापस गए उनमें से बहुत सारे लोग वापस भी आना चाहते हैं, ताकि कामकाज जो शुरू हुआ उसमें वापस काम पर लग सकें। तो आप इसमें मिश्रण देखोगे आने वाले समय में, कुछ लोग गांव में रुकेंगे और बहुत सारे लोग वापस आएंगे काम पर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन्हीं से जुड़े हुए बात करते हैं कि जो लोग अपनी कर्म भूमि से अपनी जन्मभूमि चले गए हैं। आपने मनरेगा की बात की, आपने कहा उसमें आपने मैन आवर्स बढ़ाए हैं। आपका अगर आपके जो कंटिन्यूस जो आपके अनाउंसमेंट्स थे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के साथ जो आपकी ब्रीफिंग्स थी, द फोकस वाज ऑन डेवलपिंग एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो डेवलपिंग द सप्लाई चेन। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो वापस गए हैं, अपने अपने घरों में गए हैं, उनकी जीविका के लिए क्या किया जाएगा? क्या कुछ ऐसा किया जाए कि इन्हें वापस शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने घर बार को छोड़कर, अपने परिजनों को छोड़कर वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़े, मनरेगा के तहत या किसी और स्कीम के तहत? देखिए, पहली बात तो है, जैसे जल जीवन मिशन एक बहुत अहम प्रोजेक्ट भारत सरकार का है। ये हर गांव तक, हर शहर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। इस मिशन से जुड़ा जा सकता है जी। पानी के प्रबंध वहाँ पर किए जा सकते हैं, इरिगेशन के लिए चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं, तालाब खोदे जा सकते हैं। एक तो ये तरीका रानी जी ने ट्वीट भी किया था कि अमेठी में 100 से ज़्यादा कुएं बन रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि आखिरकार उस जिले की अपनी कुछ खासियत होगी। क्या फिरोजाबाद में अगर ग्लासवेयर का काम होता है, शीशे का काम होता है, तो क्या वहाँ पर और अच्छा कैसे किया जा सकता है? बिहार में मान लीजिए मखाना है, तो उसका क्लस्टर बना के उसको विदेशों में भेजने का काम या देश भर में कैसे किया जा सकता है? कश्मीर का केसर है, आंध्रा की चिल्ली है, बाकी सब चीज़ों की हम बात करें, हिमाचल उत्तराखंड का सेब है। तो क्लस्टर जब डेवलप होंगे तो वहाँ पर ये जो हमने 1 लाख करोड़ रुपया
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया कि कृषि का आधारभूत ढांचा बनाएंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे इंडस्ट्री भी लगेगी, वैल्यू एडिशन होगी, और खेती में जो साझा खेती करने की हम बात करते हैं कि आपकी उपज बढ़े, आपकी फसल ज़्यादा हो पहले से। मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने पंजाब के कुछ किसानों को पकड़ के आलू पैदा करने का काम किया, अब कई उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। आप देखिए जहाँ पे 15 टन होता था, आज वहाँ पर 32 टन हो रहा है, केवल सीड टेक्नोलॉजी और इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधा देकर ये बड़ा बदलाव आया है। और वही कंपनी सब इनकी वैल्यू एडिशन करने की बात करती है। जब ये 1 लाख करोड़ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, तो जो मार्केट आने वाली पेरिशेबल गुड्स सड़ जाती थी या अनाज के भंडार जो खराब हो जाते थे, अब उसमें भी बचत होगी। और जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एपीएमसी एक्ट में हम बदलाव लाए, ये किसानों को जंजीरों से मुक्ति दी है। अब वो देश में किसी भी कोने में अपना सामान बेच सकते हैं। ये जो आपने अपने मूल प्रश्न में पूछा था, बहुत बड़ी बात है, वर्षों से किसान इंतजार कर रहा था, ये उसको छूट दी है तो मोदी जी ने कि वो अब ज़्यादा दाम भी ले सकता है, और उसको अगर स्टोर करना है तो स्टोरेज की फैसिलिटी भी हमने उसको दी है कि वो कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज में रखे, तो वो भी केंद्र सरकार उसमें मदद करेगी ताकि सही समय पर अपना सामान बेच सके। तो बहुत बड़ा बदलाव किसानों के लिए आने वाला है। ये आपने क्लस्टर लेवल हमने कदम उठाए जी। ये आपने जो कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं क्लस्टर लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है। अगर हम देश को 720 डिस्ट्रिक्ट, 6600 ब्लॉक्स इस नज़रिए से देखें तो क्या इस पर पॉलिसी हो सकती है? 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। लेकिन एक बात ये है, आपने ये भी कहा कि देखिए किसानों के लिए आपने ये कह दिया कि जो फार्मर है वो अपने प्रोड्यूस की प्राइस खुद तय कर सकता है, तो ये जो बीच के मिडिलमैन है, एपीएमसी और होलसेल का जो प्रेशर है वो सब हट गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आरोप है अनुराग जी कि जितने भी आपने अनाउंसमेंट्स किए वो सब सप्लाई साइड को बूस्ट करने के लिए किए, डिमांड क्रिएशन की बात आपने नहीं की। तो जब लोग खरीदेंगे नहीं तो सप्लाई करने से क्या फायदा? आनंद जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। मैंने भी पिछले कुछ दिनों में मीडिया में पढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो गरीब 20.5 करोड़ गरीब जनधन खाता धारकों के खाते में 41,000 करोड़ रुपये हमने 2 महीनों में डाला है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ डाला। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपीस हमने उस पर खर्च किए। इसके अलावा जो 2 करोड़ 20 लाख वृद्धा और दिव्यांग हैं, उनको 2800 करोड़ रुपया दिया। 7 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए, 9,000 करोड़ रुपया उनके सब्सिडी के रूप में उनके खाते में डाला। EPF में पैसा हमने 12% काम करने वाले और काम देने वाले के जमा हमने कराया 24%। EPF आप 75% निकाल सके उसके लिए हमने अनुमति दे दी। लाखों लोगों ने अपना पैसा निकलवाया। इसके अलावा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, इसमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपया हमने खर्च करने के लिए कहा कि इसमें मजदूरों के लिए आगे दे दो, और हज़ारों करोड़ रुपये दे दिए गए। यही नहीं, ऐसे कई और कदम उठाए जहां पर हमने 41 करोड़ खातों में 52,608 करोड़ रुपया डाल दिया। फिर हमने 16,84,000 लोगों को 26,242 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड मात्र एक डेढ़ महीने में किया। 25% हमने TDS और TCS में कटौती की, जिससे 50,000 करोड़ की आपको और लिक्विडिटी बढ़ेगी। यही नहीं, आपका जो लोन की किश्त वापस करने का समय था, हमने उसको भी 6 महीने एक्सटेंशन RBI से निवेदन करके करवा दी। यानी कि 6 महीने तक आपको किश्त नहीं देनी तो एडिशनल पैसा भी आपके पास आता है। बिजली की कंपनियां बैंकरप्ट ना हो तो 90,000 करोड़ उनको दिया कि बिजली की सप्लाई पूरी हो और उपभोक्ता को उसका लाभ मिल सके। ये तो वैसे मैं गिनाता जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। हमने सीधा पैसा भी दिया है, लेकिन दूसरी ओर काम करने वाला, व्यवसाय करने वाला और या मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग हो, इन सब के लिए भी हमने 3 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी कोलेट्रल के भारत सरकार ने बैंकों के माध्यम से देने की घोषणा की। हमने शुक्रवार को उसकी बैठक कर ली सब पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ और कहा है कि 1 जून को रिपोर्ट कीजिए किस बैंक ने कितने लोगों को अब तक इन आने वाले 5-7 दिनों में लोन दिया है, और उनको ये रोज़ की रिपोर्टिंग करनी होगी कितना ऋण रोज़ दे रहे हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये केवल मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए नहीं, कोई भी व्यवसाय करने वाला जिसकी 25 करोड़ तक की बैंक की क्रेडिट फैसिलिटी होगी और 100 करोड़ तक वो व्यापार करता होगा,
उन सब के लिए ये उपलब्ध है। तो इसमें लगभग अधिकतर लोग इसमें कवर होंगे। इसके अलावा जिनके खाते एनपीए हो चुके थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, उनको भी 15% इक्विटी डालने के लिए केंद्र सरकार मदद कर रही। 75 लाख रुपया एक व्यक्ति तक एनबीएफसीज को हम पैसा दे रहे हैं ताकि आम आदमी तक पैसा दिया जाए। ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जहां पे पैसे का प्रवाह ना रुक सके, लिक्विडिटी बढ़ सके। और कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप अपनी जेब में रखोगे। आप चाहे उसको आवश्यक वस्तुओं के लिए खर्च करेंगे या अनावश्यक के लिए खर्च करेंगे, लेकिन वो खर्च होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इसको आप लोगों को ये कह रहे हैं, जरिया दे रहे हैं और कोई माध्यम दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास फंड्स पहुंचे। क्या आप इस फिलॉसफी में बिलीफ रखते हैं कि हल चलाओ फल पाओ? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनके खातों में और उनको डायरेक्ट क्यों नहीं पैसे दिए गए? क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है, क्योंकि उनका तो कोई भी कमाई का जरिया बंद हो गया। तो क्यों उनके अकाउंट्स में 8-10 हज़ार रुपए क्यों नहीं दिए गए? आनंद जी, भारत के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। वो मांगने का काम नहीं, वो अधिकार चाहते हैं। वो मदद नहीं, सहयोग चाहते हैं। अंतर है दोनों में, मदद और सहयोग में। हम लोग मनरेगा का बजट यूपीए के समय 30,000 करोड़ जो खर्च होता था उससे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक लेके जा रहे हैं। ये सहयोग है कि गरीब वापस जाकर काम करे, देश का राष्ट्र निर्माण में लगे और उसके बदले उसको पैसा मिलेगा तो अपने परिवार को कहेगा कि मैंने कमाई करके किया है। दूसरा तरीका, आप किसी की प्लेट में मछली परोस दीजिए या उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दीजिए। तो मुझे लगता है भारत में ये बहुत आवश्यक है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करें। एमएसएमईज की या व्यवसाय करने वालों की इसीलिए मदद की गई कि जो 12 करोड़ से ज़्यादा लोग इनके माध्यम से काम करते हैं, उनका रोजगार ना जाए, उनके पास एडिशनल 20% वर्किंग कैपिटल हो। ऐसे बड़ी कंपनियों के लिए, बाकियों के लिए भी जो 10% इनिशियली लिक्विडिटी दी थी वो अलग से गया है। वो 67 लाख लोगों के लिए 6,70,000 करोड़ रुपया अलग से सैंक्शन हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सीधा पैसा डालना, हमने जहां जरूरत थी वहां डाला। वृद्धा विधवा दिव्यांग जनधन खाते, किसानों के खाते में और जो बाकी ईपीएफ के खातों में हमने पैसा सीधा भी डाला है। लेकिन आप मुझे बताइए, ठीक है, अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो ये जो सेक्टर हमने खोला कोयले का, कि उसका खनन अलाउड करेंगे, ना केवल कोल को केवल स्टील या बिजली वालों को देंगे, सबके लिए खोलेंगे ताकि खुली मार्केट में जाए। दूसरा, बॉक्साइट और कोल का इकट्ठी नीलामी होगी ताकि एल्यूमिनियम के यूनिट्स को फायदा मिले। मैन्युफैक्चरिंग हम हथियारों की यहाँ पर करेंगे और इसकी लिस्ट ऑफ वेपन्स बनाएंगे ताकि हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार मिले, आयात ना हो। और 49 से बढ़ाकर 74% विदेशी पूंजी निवेश को हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में किया है। इससे बल मिलेगा। स्पेस के सेक्टर को, अंतरिक्ष के सेक्टर को हमने खोला। अब हमारी स्टार्टअप से हमारी कंपनीज या टेलीकॉम कंपनी क्यों ना हो, रविशंकर प्रसाद जी चाहेंगे, मोदी जी के चाहेंगे, तो आज किस कंपनी को सैटेलाइट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में सिग्नल देके ब्रॉडबैंड की सुविधा देनी है, या हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना है, या बाकी जैसे प्राइवेट मिशंस दुनिया भर के देशों में चलते हैं, हमारे यहाँ से भी वो अंतरिक्ष के लिए चलाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी मार्केट बनेगी। सारे इसरो के पूर्व चेयरमैन ने इसका बहुत स्वागत किया है। पूर्व डिफेंस ऑफिसर्स ने कहा है कि डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। किसानों से जुड़े विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे, 30 सालों से मांग कर रहे थे, जो रिफॉर्म्स आपने 2 महीने से कम समय में किए हैं। ये हमने, कोई कह सकता है कि कोविड-19 को देखकर किया, लेकिन क्या भारत के पक्ष में नहीं किया? इतने वर्षों से हम लोग कोशिश कर रहे थे किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो नीचे सिस्टम बनाने का हमने काम किया। और आज जब देश को जरूरत है कि ऐसे कदम उठाओ कि हम कोविड-19 से निकलकर जब बाहर निकलें तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर हिलाएं, और ये बदलाव करके, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमने केवल 15% कर दिया, ये रिफॉर्म्स लाकर हम भारत को दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा कर दें। ये उस दिशा में कदम है। कुछ लोग आज भी लोगों को निर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। हम भारत को ही आत्मनिर्भर करने की सोच रख रहे हैं।
क्या बात है। तो ये अनुराग ठाकुर जी का पंच लाइन भी आ गया कि कुछ लोग निर्भर बनाने की बात कर रहे हैं कुछ, और हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और सही जज्बा है, सही जज्बा है। एमएसएमईज की बात करते हैं। 11 से 12 करोड़ लोग डायरेक्टली इसमें अपना रोजगार, अपनी जीविका एमएसएमई इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो कहते हैं, और लेकिन इनडायरेक्टली कम से कम 40 से 50 करोड़ लोगों की जो है आजीविका इससे जुड़ी है, इस एमएसएमई सेक्टर से। कहीं ना कहीं ये आरोप है अनुराग जी कि आपने लोन तो बहुत सारे अनाउंस कर दिए पर डायरेक्ट लिक्विडिटी कुछ नहीं दी, क्योंकि इमीडिएटली सबको कैश चाहिए वर्किंग कैपिटल और सैलरीज देने के लिए, और जो एक्सपेंसेस हैं उसको टाइड ओवर करने के लिए पिछले 2 महीने के। आप क्या कहेंगे? आनंद जी, मैं इस भ्रम को भी दूर करना चाहता हूं। पहला यह है कि क्या केवल ये एमएसएमई के लिए है? नहीं, ये व्यवसाय करने वाले और साथ में मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए भी। बिजनेसेस एंड एमएसएमईज विल गेट द एडवांटेज ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीज दिस क्रेडिट फैसिलिटी और द लोन फैसिलिटी। एंड हु विल गारंटी? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु इज गिविंग 100% गारंटी। द बोरोअर doesn't need to give even a single penny guarantee, not a guarantee, not even a collateral। तो ना उनको कोलेट्रल ना गारंटी देनी है, और भारत सरकार ने 100%, आखिर पैसा हम भी बैंक के माध्यम से देते, ये भारत सरकार का ही पैसा है जो लोगों को मिल रहा है। Correct। और साथ में जो आज आपको ब्याज की किस्त वापस करनी थी वो आज नहीं, अब 6 महीने के बाद वापस करनी है, और 6 महीने के बाद भी उस पर आपको केवल टर्म लोन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। ये आज तक नहीं हुआ था, हम कर रहे हैं। ये इसीलिए ही है कि करोड़ों लोग जो छोटे छोटे काम से, कोई ट्रेडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मैन्युफैक्चरर है, इन सबको उसका लाभ मिलने वाला है। और कोई नोट को इस तरफ से देखे, इस तरफ से देखे, ये तो नोट रुपया नोट ही है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आप कहें ऐसे क्यों नहीं दिया, हम ऐसे दे रहे हैं। मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। चलिए एक और रिलेटेड इंडस्ट्री की बात करें, वो है हॉस्पिटैलिटी। अगर आप होटल्स की बात करें, ट्रैवल टूरिज्म की बात करें, और अब इस माहौल में ये सबसे ज़्यादा आघात इनको पहुँचा है। कम से कम 90 लाख से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, हर कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज नाउ बिकम अ लग्जरी। This will be the last of the industries to be revived, but they were the first to crash. आप तो हिमाचल से हैं, पहाड़ी हैं, तो आपको भी पता होगा कि हिमाचल में भी टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं पहाड़ी राज्य से आता हूँ, हिमाचल जी। और हमारे यहाँ तो टूरिज्म से, हमारी आबादी 70 लाख है, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख के लगभग टूरिस्ट आते हैं। तो आप कल्पना कीजिए हिमाचल जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ के होटलियर्स पर, या बड़े शहरों के होटलियर्स या बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के होटलियर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, निश्चित तौर पर। लेकिन उनको भी जो इस कैटेगरी में आते होंगे कि 25 करोड़ तक की क्रेडिट फैसिलिटी हो या 100 करोड़ तक का टर्नओवर हो, वो भी इन पैसों का लाभ ले सकते हैं जो भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की सुविधा दी है, या बाकी योजनाएं जो हम लेकर आए उनमें से भी ले सकते हैं। जो इससे बाहर रह जाएंगे, हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके लिए भविष्य में क्या किया जा सकता है। और हमने तो प्रयास किया कि ट्रेनें, एयरलाइंस, इन सबको शुरू करने का, ताकि आने जाने की सुविधा भी मिले। अब जब ये शुरुआत होगी तो आने वाले समय में होटल्स की शुरुआत भी हो जाएगी। अब सिनेमास बंद हैं जी, होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं। हाँ, निश्चित तौर पर इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जी। इनको किराया देना पड़ रहा है, बिजली का बिल अगर राज्य की सरकारों ने नहीं माफ़ किया तो अब तक वो भी देना पड़ रहा है। अगर जो एम्प्लॉय इनके हैं तो उनकी तनख्वाह भी देनी पड़ रही है। अपने आप में बहुत बड़ा दबाव है, और हम लोग इसको ध्यान में रखे हुए हैं। अभी तक जो सुविधा दी उसको उठाएं, और भविष्य के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई अंत नहीं है कि अब तक जो किया ये अंतिम ही था। अनाउंसमेंट्स पर थोड़ी देर के लिए रोक लगी है, या मैं कहूँगा अनाउंसमेंट्स ख़त्म हुई है, लेकिन एक्शन जारी रहेगा। लोगों को जो मदद की ज़रूरत भविष्य में भी होगी, हम उन पर भी विचार करेंगे, और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, मोदी सरकार वो कदम भी उठाएगी।
तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस रिफॉर्म के इस प्रकरण में, ये जो इकोनॉमिक पैकेज के प्रकरण में शायद अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं। लेट मी आस्क यू दिस अबाउट डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वेलकम अनाउंसमेंट ये था कि आप एनकरेज कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप फैक्ट्री लगाइए ब्लॉक्स में, क्लस्टर्स में, जो आप आइडेंटिफाई करें जहाँ जिस रीजन की स्ट्रेंथ है और आपको जहाँ लगाना है। और अब पीपीपी के जरिए आप जो ज़मीन प्राइवेटली आप ज़मीन खरीद कर वहाँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं। आपको लगता है कि इसके साथ साथ कुछ टैक्स हॉलिडेज ऑफर करने की ज़रूरत है ताकि आप थोड़ा सा और ज़्यादा इनकरेज करें इंडस्ट्रीज को? आनंद जी, जो आपने देखा होगा कि जिन कंपनियों में रहने की सुविधा श्रमिकों की थी, उन लोगों ने वहाँ पर कैंटीन से खाना भी दिया और उनके श्रमिक वहाँ पर आज अवेलेबल भी हैं। जहाँ पर बाहर रहते थे उनके ऊपर किराए की मजबूरी बनी और वापस जाने की मजबूरी भी हो गई, ये एक बड़ा कारण था। अब आने वाले समय में भारत सरकार ने कहा कि जो हमारे अपने पास एडिशनल फैसिलिटी है या और बनानी होगी, हम वो भी करेंगे शहरों में। और इसके अलावा जो कंपनियां निवेश करके या कोई प्राइवेट स्तर पर भी कोई करना चाहता है, उसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे, चाहे वो टैक्स में ब्रेक्स हो या कोई और इंसेंटिव्स देने की बात हो, ताकि हमारे जो प्रवासी श्रमिक आते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहने की व्यवस्था हो सके और उनको किसी भी संकट की घड़ी में ऐसी परिस्थिति से ना गुजरना पड़े जैसे अब गुजरना पड़ा। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी, आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए प्रयास किए। तो आप कह रहे हैं कि इसके प्रयास हो रहे हैं, टैक्स ब्रेक्स की गुंजाइश है। चलिए जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूँगा, समय कम है, सवाल बहुत सारे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर कितनी तवज्जो होगी, क्योंकि ओनली 5.4% ऑफ आवर लेबर फोर्स इज स्किल्ड, and is there going to be a revisit on the labor laws? देखिए, लेबर लॉज को लेके बहुत सारे राज्यों ने कदम भी उठाए हैं, जिसकी बहुत प्रशंसा भी मीडिया और बाकी क्षेत्र के लोगों ने की है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि स्किलिंग की जब बात आती है तो भारत को तो दुनिया भर की सबसे बड़ी लेबर फोर्स बनना है, स्किल्ड मैन पावर भारत में सबसे ज़्यादा हो, और हमारा युवा जो है और गैप हमारा इस देश का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और अगर वो स्किल्ड मैन पावर के रूप में तब्दील होगा तो निश्चित तौर पर वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। और इसीलिए हमारे जो प्रोजेक्ट अब तक चल रहे हैं स्किल के, उसमें और गति दी जाएगी। और एक जो विदेशों से भी लोग वापस आ रहे हैं, हम इनकी भी जानकारी ले रहे हैं और हर पंचायतों में भी ऐसी डायरेक्टरी बने कि जो वापस आया उसका स्किल सेट क्या है, उसमें वो और क्या सुधार करना चाहता है, ताकि अगर उसको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल पाए तो वहाँ पर कर ले, नहीं तो उसके स्किल सेट में और सुधार करके उसको और आगे अच्छा पैसा मिल सके, उसके लिए भी प्रावधान किए जाएंगे। ये लगातार निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, इसको और गति दी जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उस सब्जेक्ट पर जो आपके भी करीब है, मेरे भी करीब है, पूरे देश के करीब है, क्रिकेट पर, स्पोर्ट्स पर, आईपीएल पर, क्योंकि क्रिकेट शुरू होगा तो बाकी सब खेल भी शुरू होंगे। आनंद जी, जब 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ तब ये लगता था ना जाने दुनिया में क्या क्या हो जाएगा, और सही मायने में किसी को पता नहीं था, और आज भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है जी। लेकिन जब सबने इकट्ठे मिलकर लड़ाई को लड़ा, जागरूकता बढ़ी, गांव तक के लोगों ने अपने चेहरे को ढकने का काम किया, अपने हाथों को लगातार धोने का काम किया, 2 गज की दूरी बनाई, यहाँ तक कि आना जाना बंद कर दिया, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके जानकारी ली, तो इससे समाज में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भावना भी पैदा हुई और जागरूकता भी हुई। अब उसका लाभ क्या हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी सेक्टर्स को खोला गया, लोग कामों पर जाना शुरू हो गए, दुकानें खुलनी शुरू हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ट्रेनिंग शुरू हो गई, खिलाड़ी वापस जाना शुरू हो गए। लेकिन क्या बंद कमरे में या बंद स्टेडियम में हज़ारों लोग इकट्ठे आज किए जा सकते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर और अनुकूल समय आएगा तो मुझे लगता है उसमें और कदम उठाए जा सकते हैं। टेलीविज़न चैनल्स को देखना पड़ेगा, क्या अगर क्रिकेट का मैच होता है, स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं होता, तो उसकी क्रिएटिविटी कैसे खड़ी करेंगे ताकि जो दर्शक टीवी पर देख रहा है उसको ऐसा महसूस ना हो कि इस मैच को देखने कोई नहीं आया। उसको फीलिंग कैसे आएगी कि आज भी स्टेडियम खचाखच भरा है, आवाज़ें आ रही हैं, लोग चीयर अप कर रहे हैं, और उसका एंटरटेनमेंट भी हो
और कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो अंदर फील्ड के अंदर खेलता है, जब 40-50 हज़ार क्राउड इकट्ठा बोलता है, तो आप कल्पना कीजिए कि उसमें रक्त में कैसा संचार होता होगा, किस तरह से उसमें और ताकत और बल उसको मिलता होगा। वो जब वो मिस करेगा खिलाड़ी, तो उसको भी दिक्कत आएगी परफॉर्मेंस पे। तो ओवरऑल इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं टीवी पर बहुत निर्भर करता है, एडवर्टाइजमेंट पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन खिलाड़ी निश्चित तौर पर खेलना चाहेंगे, लेकिन हमें लोगों की जान और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखकर कदम उठाने हैं। भविष्य में किया जा सकता है, खेलना चाहेंगे भी, और कैसे ये आज कहना सही नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी इसमें समय है, थोड़ा सा इतनी जल्दी इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अनुराग जी कि टीम ट्रैवल कैसे करेगी, क्योंकि एयर ट्रैवल के लिए आपने हवाएं खोल तो दिए, लेकिन आज ही देख लीजिए 630 फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई, क्योंकि स्टेट्स ही तैयार नहीं है लोगों को वेलकम करने के लिए। अगर लोग आते भी हैं तो उनको इमीडिएटली क्वारंटीन में भेज दिया जाता है। तो मैं क्यों जाऊँ अगर मुझे वहाँ जाकर 14 दिन क्वारंटीन में रहना है। मुझे लगता है भयभीत होने की बजाय इसका रास्ता निकालना चाहिए कि वे आउट क्या है। अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे कोविड-19 के पॉजिटिव के, और अगर वो दिल्ली से मान लीजिए चला अपना टेस्ट करवा कर मुंबई में उतरना चाहता, तो मुंबई में वो उतर कर उसका टेस्ट हो जाए। आखिरकार वो किया जा सकता है, और वो अपना काम करके अगर वापस आना चाहता तो वो 14 दिन क्वारंटाइन वहाँ पर क्यों करेगा। तो फिर हवाई यात्रा को कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जिसको अगर चंद घंटों के काम के लिए जाके शाम को वापस आना है, अगले दिन वापस आना है, आखिरकार वो 14 दिन क्वारंटाइन क्यों करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, मुझे लगता है राज्यों को इस विषय पर ध्यान से सोचना चाहिए। अगर उसकी चेकिंग दिल्ली में हो रही है एयरपोर्ट एंट्री करने से पहले, और उसकी लैंडिंग करने के बाद मुंबई में चेकिंग या किसी और शहर में हो रही है, और वो उसमें कोई ऐसे लक्षण नज़र नहीं आते, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। कोई भी नहीं कहेगा मास्क ना पहनूं, सैनिटाइज ना करूं, या 2 गज की दूरी ना बनाऊं। तो मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा खुले मन के साथ सोचकर और इसमें आपसी बातचीत करके और ध्यान देना चाहिए, और इसमें और अवसर देने चाहिए। बिल्कुल। और जैसे हम बात कर रहे हैं, मुंबई ने थोड़ा सा अपना ये रिलैक्सेशन दिया है, कहा है कि जो हफ्ते भर से कम के लिए आना चाहते हैं उनके लिए ये होम आइसोलेशन कंपलसरी नहीं है, बट दे कांट एंटर द हॉटस्पॉट, सो परहैप्स स्टेट्स विल कम अराउंड। बट व्हेन विल वी बी अप एंड रनिंग? इज देयर अ होराइजन, इज देयर अ टाइम दैट यू ईयरमार्क्ड? आपको कब लगता है कि सब थोड़ा ठीक होने लगेगा माहौल, और क्या और भी अनाउंसमेंट्स की उम्मीद कर सकते हैं हम सरकार से? आनंद जी, 24 मार्च से पहले देखने को ये लगता था कि जो अमेरिका, इटली, स्पेन की हालत हुई है, तो 137 करोड़ वाले भारत में, तो 137 करोड़ की आबादी वाले भारत में क्या होगा। उस समय हमने कल्पना नहीं की थी कि हम इतना अच्छा कर पाएंगे, लेकिन सबने इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ी। मोदी जी ने जो देश से निवेदन किया, आह्वान किया, उसका लोगों ने फॉलोअप किया। राज्य की सरकारों ने, आम जनता, मैं बहुत आभारी हूं उन सबका। और इस जंग को भी लंबा लड़ना है, जैसा आपने पहले कहा। रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसको बढ़ाना है, इम्यूनिटी लेवल को और बेहतर करना है। अपने आप को बचाने के लिए जो कदम कहे कि मुंह ढकना, बाकी सब वो करने हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो हमें और सेक्टर्स को खोलते चले जाएंगे, चाहे वो सिनेमा हो, होटल्स हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की बाकी सुविधा हो, आने जाने की बात हो। अगर हम इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे, बचना और दूसरे को बचाना, तो मुझे लगता है सरकार भी आहिस्ता आहिस्ता और इसमें छूट देगी, एसओपीज़ में और बदलाव लाया जाएगा। और सरकार ने सबसे विचार विमर्श करके किया। मोदी जी ने कभी अपने आप निर्णय नहीं किया, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके आम सहमति बनाकर किया। अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को कहा कि अब उनको और कितनी कितनी छूट देनी आप और दे सकते हैं, उनको निर्णय करना है। तो जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, राज्यों का विषय, मुझे लगता है सरकारें भी इस पर गंभीरता से विचार करेंगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करेंगी, जागरूकता अभियान लगातार चलाएंगी, और आम आदमी भी अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हुए, जिम्मेदार भारतीय समझते हुए हर एक कदम उठाएगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ पटरी पर उतरेगी, आगे बढ़ेगी, और इस लड़ाई को कोविड-19 से भी लड़ेंगे और दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़े हो जाएंगे।
आखिरी आखिरी के एक दो सवाल और मेरे पास, मैं जानता हूँ आपके पास भी समय कम है, मैं बस जल्दी से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष का रवैया कैसा रहा है, कंस्ट्रक्टिव रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव रहा है? जो हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ और प्रियंका वाड्रा के बीच में नोकझोंक चल रही है, पीयूष गोयल जी और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे से के बीच चल रही है, राजस्थान और इधर चल रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल में चल रहा है, आपको क्या लगता है ओवरऑल रवैया कैसा रहा है? आनंद जी, ऐसा है कि जब देश जंग लड़ रहा होता है तो सब एक भाषा में बोलते हैं और बोलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र हित सबसे सर्वोपरि मानता हूं। इसलिए ये जंग छोटी नहीं थी, ये पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध से भी बड़ी थी। जितनी लड़ाइयां भारत ने आज तक लड़ी उससे बहुत बड़ी थी। दुनिया भर के ऊपर संकट था जी। और अगर विपक्ष ने कहीं पर विपक्ष की भूमिका सरकार को बार बार सचेत करने के लिए निभाई होती तो बहुत अच्छा है, और निभाई होगी तो वो भी मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर केवल दिखावे के लिए आलोचना करना, राजनीति करने तक सीमित रह गए तो मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए कहना चाहता हूं, हमने अपने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन 2 महीनों में हमने वो रिफॉर्म्स लेकर आए जो शायद पिछले 20 वर्षों में भी नहीं आए, और 2020 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाएगा। ये आज आप मेरी बात लिख लीजिए। और ये जो बदलाव हमने किए हैं यही भारत को दुनिया की पहली 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा कर देगा। यही बदलाव भारत में रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार के नए आयाम और नए अवसर पैदा करेगा। विपक्ष ने आलोचना की होगी, कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया होगा, वो कर सकते हैं जो उनको करना हो, लेकिन जाते हुए गरीब के साथ केवल दिखावा करना वो मत करिए, मदद कीजिए। आप भी राज्यों में, सरकारों में हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करिए। जहाँ पर हमसे कमी रह गई होगी आप कृपया बताइए, हम लगातार आपको सुनने के लिए तैयार हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूँ मोदी सरकार हर वो कदम उठाएगी जो गरीब के, हर भारतीय के हित में है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए है। इसमें हम कदापि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनुराग जी, बिना कहे आप बहुत कुछ कह गए। चलिए, मेरे पास समय कम है, आपके पास भी समय कम है, इसलिए मैं ज़्यादा आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन जो सुन रहे हैं वो समझ गए हैं कि आपने क्या कहा। पर एक बात बताऊं कि स्वाभिमानी होना, आत्मनिर्भर होना, भारत को एक बढ़िया सा एक ब्रांड बनाना, एक उसकी पहचान बनाने का लक्ष्य बहुत बढ़िया है और उस पर आप चले हैं। पर आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन तक जब तक आप नहीं ले जाएंगे तब तक सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी। इम्प्लीमेंटेशन बहुत की है। It's very important, Anurag, that this is done through, follow through. आनंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। आखिर ये क्यों आता है कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है? 2 कारण, क्योंकि वर्षों तक ये दिखता रहा, लेकिन अब 2014 के बाद मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जिस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की काम कहा था और किया, वो गरीबों के खाते तक नहीं खोल पाए। मोदी जी ने आके 40 करोड़ गरीबों के खाते खोले, आधार कार्ड बना कर दे दिए, मोबाइल की सुविधा तक दे दी। अब ये जैम ट्रिनिटी के कारण डीबीटी करके, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र करके सीधा खाते में पैसा जाता, कोई बीच में चोरी नहीं कर पाता। जिनके समय में 100 रुपये में से केवल 15 रुपये पहुँचते थे, आज हम 100 भेजते तो 100 खाते में जाते हैं। ये बदलाव हमने किए हैं। बैंकों का जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, हमने आकर उसमें सुधार किया, उनकी रिकैपिटलाइजेशन की, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जैसे हम कानून लेकर आए ताकि उनकी वापस रिकवरी हो सके। एडमिशन स्टेज से पहले 5 लाख करोड़ के केसेस रिजॉल्व हो गए और 221 केसों में 44% रिकवरी हुई, जो लगभग दुगनी है। ऐसा ही नहीं, जीएसटी हम लोग लाए, हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज भी अगर हमने घोषणा की संडे को तक ख़त्म की तो बुधवार को हमने उसका कैबिनेट में पास कर दिया। शुक्रवार को निर्मला जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ मिलकर हम लोगों ने जो बैठक की, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बुलाकर कहा कि पैसा बांटना शुरू कर दो और 1 जून को रिपोर्टिंग शुरू कर दो। अब जिन जिन मंत्रालयों को जो जो रिफॉर्म्स करनी उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। ये हम इसको एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, टारगेट लेकर चल रहे हैं, उस पर लगातार दिन रात एक काम करेंगे। पिछले 2 महीनों में मेरा अपना मानना है कि हमारा आउटपुट और पहले से बेहतर रहा है। जहां तक रिफॉर्म्स लाने की बात हो या कदम उठाने की बात हो, इम्प्लीमेंटेशन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। हम देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं जी। और एक पारदर्शी काम करने वाली सरकार ये कहना चाहती है, हम इसको अच्छे ढंग से निभाएंगे। जी, we'll look forward to that, and we'll hold you to that, Anurag Thakur. We look forward to engaging with you again, perhaps a quarter down the line, and see how much of the implementation has happened, how much of the follow-through has actually happened. Thank you so much for speaking to us, Anurag Thakur जी। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए यहाँ CNN News 18 पर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आनंद जी, आप हमें कटघरे में भी खड़ा कीजिए, सवाल भी पूछिए और जो अच्छा काम है उसको जनता तक पहुँचा के जागरूकता भी फैलाइए, क्योंकि इससे बड़ी जिम्मेदारी शायद किसी की नहीं करेंगे। आप लोग देश में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव वातावरण खड़ा कर सकते हैं, जिससे देश को आत्मबल मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच अनुराग ठाकुर। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे विद अस हियर ऑन द राइट टाइम।